की जय हो, की जय हो। हमारे यहाँ के हल्का इंचार्ज जिनके प्रयासों से ये कार्य सारा हुआ जय हो। जी ने ये वर्तमान विधायक हैं और उनका क्षेत्र दूसरा होने पर भी इन्होंने किस प्रकार से सेवा का ये कार्य किया है, इनकी सेवा सराहनीय है। वास्तव में जनता के सेवक हैं और जो ऐसे सेवक हैं वो हमेशा के लिए विजयी हुआ करते हैं। जोगिया वे जोगिया आवा तेरे मंदिर आते, चल चल थक देना पैर, चल चल थक देना पैर। वो दिल पर चौंदियां ने सुंदर पहाड़ियां, वो दिल पर चौंदियां ने सुंदर पहाड़ियां, सोना तेरा लग जोगिया वे जोगिया आवा तेरे मंदिर आते, चल चल थक देना पैर, चल चल थक देना पैर। वो दिल पर चौंदियां ने सुंदर पहाड़ियां, वो दिल पर चौंदियां ने सुंदर पहाड़ियां, सोना तेरा लगदा है शहर, सोना तेरा लगदा है शहर। महाराज जी जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਧਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਈਏ, ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇਵੋ ਮਹੇਸ਼ਵਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਖਾਤ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਸਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਵੇ ਨਮः। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਚ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚ ਪਧਾਰੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਰਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਲਾਂਵਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਅੱਜ ਅਨਾਵਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੇ ਪਧਾਰੇ ਆ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਧਾਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਭਗਵਤੀ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਧਵਜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਲਾਸਰ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ
ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾर्य ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਰਸੋਂ 11 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾर्य ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਵਸਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਨਾ आवे, सब ठीक है। गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। माननीय श्री दिनेश लाल जी के पास अपनी हाजिरी लगा बाईपास में हम जो सुनते हैं, बच्चे लोगों को कहते सुना, वह सारे समस्या का हल तो दिनेश यही हम सुनते हैं। इस शब्दों में वर्णन करूं दिनेश लाल साहब का, मेरे शब्दकोश में इतने शब्द नहीं है कहीं कि मैं इनका वर्णन कर सकूं। हमारी नारायण सेवा समिति और इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं इनका धन्यवाद करते हैं और सबके हृदय में रहता है, प्राणी मात्र में रहता है, लेकिन ये प्रेम नेत्र का विषय नहीं। आत्मा अतीन्द्रिय तत्व, वो इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता। ऐसे ही प्रेम शब्द जो है वो जल्दी पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन प्रेम जिसके हृदय में पैदा होता है वो आत्मा पवित्र हो जाता है। जहां जहां रहता है ये प्रेम सबको पवित्र करता है। स्वार्थ के कारण मानव का प्रेम जो सीमित और संकुचित हो गया है, खाली उसे विस्तार करने की आवश्यकता है, और वो विस्तार होता है वेदांत वाक्य के द्वारा। वेदांत वेद्यम वेद्यम, ब्रह्म या परमात्मा या आत्मा वेदांत का विषय है। वेदांत जो नीचे है उसे तो गुरु ही बनने का अधिकार नहीं। क्या है, वो भक्ति करे, सेवा करे, प्रेम करे, भगवान का नाम ले, ये सब करे, क्या है, भगवान को समर्पित हो जाए, शरणागत हो जाए, ये भक्ति का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग ये उनका मार्ग है जो वेदांत के रहस्य को जानता है। वेद माने ज्ञान, उस ज्ञान का जो सार है वो वेदांत है। वेदांत वेदम विभुम, जो विभु वस्तु है, जो व्यापक वस्तु है, जिसका कहीं भी अभाव नहीं है, तो कहीं भी प्रेम के द्वारा प्रकट हो सकता है। और प्रेम ईश्वरी चीज है, हमें आपको सब ईश्वर ने दिया है। प्रेम से की गई सेवा अमर होती है। आपने प्रेम से सेवा किया है, इसलिए बहुत प्रसन्न है। आप कल्याण की कामना। जय हो। जो आहार है वो शुद्ध होना चाहिए, हमारा श्रवण भी शुद्ध होना चाहिए, हमारा दर्शन भी शुद्ध होना चाहिए, और हमारा जो आहार है जीव का वो भी शुद्ध होना चाहिए, और हमारा स्पर्श भी शुद्ध होना चाहिए। हमारी पांचों इंद्रियों का आहार शुद्ध होगा तो हमारा व्यवहार तो अपने आप होगा। जहाँ हम ईश्वर को समर्पित हो गए, ये काम ईश्वर को समर्पित व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है, तो आपने सेवा किया, आश्रम की सेवा किया, सबकी सेवा किया, सब इस रास्ते पर चलने वाले सब जनता की सेवा किया, तो ये तो जो हुआ है ईश्वर को समर्पित हो। तो ईश्वर को जब कोई समर्पित हो जाता है, कोई कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तब उसमें कोई अभिमान नहीं, उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता, तब वो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, स्वर्ग नरक से भी मुक्त हो जाता है, और स्वर्ग नरक से राग द्वेष से दोनों से मुक्त हो, कर्ता भोक्ता बन के अभिमान से मुक्त हो, और फिर भी कर्म करे। ऐसे पुरुष कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। एक ही तक आसक्ति को छोड़ करके, अभिमान को छोड़ करके जब हम कोई भी कर्म करते, कोई भी कर्म माने हर कर्म का करना पड़ता है। यह भी हमारे उदाहरण में हमने समझते पर कभी राम भगवान ने किया, क्षत्रिय कुल पैदा करके, और सामने ब्राह्मण कुल पैदा होते हैं। भगवान किसी कुल में पैदा हो जाए, भगवान किसी वर्ण में पैदा हो जाए, भगवान किसी प्रदेश में पैदा हो जाए, अरे तो भगवान की भगवत्ता रहती। तो किसी भी शास्त्रों में वर्ण का और जाति का पक्षपात नहीं। जिस वर्ण में, जिस आश्रम में, जिस जात में धर्मी लोग होंगे उनका नाश होना चाहिए। चाहे ब्राह्मण कुल के हो, चाहे क्षत्रिय कुल में, चाहे कोई भी, चाहे जिस जात का हो, चाहे पार्टी का हो, उसके लिए कुछ समझाता नहीं सनातन।
इसलिए कभी भगवान परशुराम क्या है और अधर्मी राजाओं का नाश कर देते हैं, कभी भगवान श्री राम है अधर्मी क्या है रावण का नाश कर देते हैं, उनके सहायकों का भी नाश कर देते हैं, मूल समूल से नाश कर देते हैं। इसी प्रकार से वही वंदनीय है, आदरणीय है, वही महान है। उनमें कोई वर्ण का जाति का पक्षपात ऋषियों में, मुनियों में, ऋषियों में, आचार्यों में, भगवान के अवतारों में पक्षपात का आरोप लगाया नहीं है। ये सनातन धर्म, ये सनातन धर्म ईश्वर के नजदीक ले जाए वो हमारी संस्कृति है, ईश्वर से दूर ले जाए वो हमारी विकृति। इसलिए आत्मा को ध्यान में रख करके ये सब बनाया गया है। धर्म का निरूपण जो बनाया गया वो नया नहीं है, बहुत प्राचीन है। हमें आपको जितना ज्ञान हुआ है, आज भी ज्ञान है, तो सब ज्ञान वेदों से है और वेद ईश्वर की रचना है। भले हम उसको भूल जाए, जातियों पढ़ करके, पंथों पढ़ करके, देश को पढ़ करके, प्रदेश को पढ़ करके, भाषाओं को पीछे, पार्टियों को पीछे, भले हम सत्य को भूल जाए, लेकिन सत्य तो कभी मरता ही है। उसी सत्य का उद्घाटन करने के लिए, सत्य का और आदर करने के लिए, उसी सत्य को जागृत करने के लिए और हम यहाँ पर दल में आपने शिफ्ट में आए हुए हैं। तेज प्रताप जी हमारे भक्त हैं, आप नेता हैं, हमने उनको फोन किया, बोलिए जल्दी से आप आ जाइए और आपका नाम लिया कि इन्होंने ये रास्ता बन गया है, लोकार्पण करना है, तो तुरंत टिकट बनवा दिया हमने। गुरु महाराज की जय हो। कहते ने भोले शंकर ते जेकर यकीन करिए ते बेड़ी डुबदी नहीं भावें अड़ी होवे, उस भगत नूं कोई नहीं कमी रहिंदी जेदी बांह शंकराचार्य ने फड़ी होवे। ताली। अज असीं साडे छोटे वीर ढल साहब आए ने, असीं इन्हां दा सारे नारायण सेवा समिति वालों धन्नवाद करते हैं। एक बेनती होर लाउंदे आ भी जो भी कुछ उपर लेंटर पै रहा जी, इन्हां नूं होर सानूं सहयोग मिले। असीं ये बेनती करते हैं, जिन्ना कोई सानूं सहयोग मिल सके उन्ना ही बड़ा जी। ये गुरु महाराज चरनां 'च फरियाद आ, इन्हां के लाई आ जी। पांच लोगों के द्वारा की तस्वीर स्थिर है। पहला है गौ, पृथ्वी का ही रूप गौ, पृथ्वी गौरूप को धारण करती, इसलिए गाय का दूध सबके लिए कुछ गाय के दूध में और पशुओं के दूध में जो दोष होता है वो गाय का, इसलिए 14 रत्नों में गाय ईश्वरी थी। ये सारे के सारे रत्न ईश्वर ने सब मनुष्यों को अपने जीवों के लिए सब कल्याण किया। वेद माने खाली पुस्तक नहीं, वेद माने ज्ञान, हमारे आपके अंदर जो ज्ञान है और वो ज्ञान परंपरा में बना रहे तो वेद के रूप में सुरक्षित कर दिया। वेद का ज्ञान देने वाले भगवान नारायण ब्रह्मा को वेद का ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्मा अपने पुत्रों को वेद ज्ञान दे रहे हैं, सब ऋषि मुनियों को दे रहे हैं। और ब्रह्मा की संतान यहाँ संसार में सब ब्राह्मण ही कहे जाते थे। ब्रह्मा से उत्पन्न सब ब्राह्मण ही, सब उन्हीं की संतान थे। लेकिन कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार फिर वर्ण का विभाजन कर दिया गया कि देश में रक्षा करने वाले भी लोग रहे, पहले से निर्धारित रहे ताकि उनकी परंपरा बनी रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी की परंपरा बनी रहे, ज्ञान की परंपरा बनी रहे, ऐश्वर्य की वैभव की परंपरा बनी रहे और सेवा कार्य की परंपरा। यही चार वर्ग, इसमें कोई ऊंचा नीचा आपस में ऐसा कुछ नहीं वर्णन किया गया। हमारे पैर की भी आवश्यकता है तो हमारे हाथ की मजबूत होनी चाहिए, रक्षा तो हाथ ही करेगा।
और पूरे शरीर में कहीं भी कोई भी पैर में कांटा लग जाए तो हाथ तुरंत जाएगा वो। ये नहीं कहेगा मेरा काम नहीं, हाथ खाली हाथ की रक्षा नहीं करेगा। ऐसे समाज में जितना क्षत्रिय है, अपने वीर लोग हैं, वो ये नहीं खाली कि हम अपनी ही जात की रक्षा करेंगे ना, और सारे शरीर की रक्षा करना है, सारे विश्व मानवता की रक्षा करना है। सारा विश्व आपका भगवान का शरीर है, सारा ब्रह्मांड उनका शरीर है। तो जैसे हमारा आपका शरीर है और अपने शरीर की रक्षा हमारा हाथ पूरी शरीर की रक्षा करता है, पैर पूरे शरीर को लेकर चलता है, पेट पूरे शरीर को भोजन पचा कर देता है और मुख से ग्रहण होता है। ये नहीं कि अभी तक मुख से खाया कान से खाएंगे नाक से खाएंगे, नहीं। जो परंपरा है उसी के अनुसार चलना है, उसी में सुधार करना है, उसी को उत्तम से उत्तम बनाना है। जो कि परंपरा है, वेद शास्त्र ही सनातन धर्म की आधारशिला है। धर्म का आधार क्या है? वेद। इसलिए भारत में कितनी संस्कृतियां आई, कितने शासन आ गए, लेकिन भारतीय संस्कृति सुरक्षित रही, जीवित और जागृत रही, क्योंकि उसका मूल क्या है? ईश्वर से जुड़ा, वो मनुष्य की रचना नहीं। हाँ, अब आचार्यों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा ये ज्ञान शिष्य को प्राप्त होता है, पहली परंपरा से प्राप्त हो रहा है। ये हमारा परंपरा है। ये सब हम कोई बंदर से मनुष्य नहीं बनाना, यहाँ तो ब्रह्मा जी भगवान नारायण से उत्पन्न होते हैं। भगवान नारायण की नाक कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से नारद आदि, सनकादिक ऋषि, मनु आदि सब उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। दक्षादि सब उन्हीं की संतान से, संकल्प से उत्पन्न हो जाती है, और वही उन्हीं की परंपरा से हम और आप सब लोग हैं। पृथ्वी की प्रथम जो मानव जात है और प्रथम मनुष्य तो भगवान शिव, भगवान नारायण, ब्रह्मा क्या है, और उन्हीं से उनकी संतान परंपरा चली हुई है। तो हम और आप सब ईश्वर की संतान हैं। जीव मूलतः परमात्मा का अंश है। जीव मूलतः परमात्मा का अंश है, मूलतः। और जब हम मूल को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? अशांति हो जाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, क्रोध आएगा, काम आएगा, अहंकार आएगा, कहीं लोभ के वश से आदमी गिर जाएगा, कहीं काम से गिर जाएगा, कहीं क्रोध से गिर जाएगा, तो उसका पतन होता है, इन्हीं को लग जाता है। तो निर्विकार होकर के आत्मा का निर्विकार ज्ञान बना रहे, और फिर आप जीवन के संघर्ष करते रहो, तो सब संघर्षों को आप पार करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। घबराना किसी को नहीं, सबके जीवन विपरीत परिस्थिति आती है, लेकिन सहन करके ही आदमी आगे बढ़ता है। क्या सहन शक्ति से आदमी आगे बढ़ता है। जहाँ रहो सहन शक्ति चलते रहो, धैर्यपूर्वक चलते रहो। विपरीत परिस्थितियों में भी किसी नारी को अपना धैर्य नहीं। धर्म का पहला लक्षण है धृति, माने धैर्य। राम ने कितना धैर्य रखा। कृष्ण भगवान के माता पिता निरपराध जेल खाने बंद कर दिए गए, उनके साथ उनके 6 भाई तो मार दिए गए, कंस ने मार दिए। और वसुदेव जी ने अपने बच्चे को कैसे रात की रात पहुंचा दिया, गोकुल पहुंचा दिया। अपने बच्चों की रक्षा करना माता पिता का कर्तव्य है, बड़ों का दायित्व है। समाज के बड़े लोगों का यह उत्तरदायित्व है कि अपने राष्ट्र के बालकों की रक्षा करें। हर बालक बालिका की रक्षा होनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, उनका ज्ञान भी ठीक रहे, और उनका ये उनके जीवन में आनंद भी रहे। तीनों रहना चाहिए, हम जीवित भी रहे, हम समझदार भी रहे, लेकिन हम आनंद भी रहे। आनंदित ब्रह्म, ये आनंद ब्रह्म कहा गया है। तो जीव मूलतः परमात्मा का अंश है, और जब परमात्मा का अंश है तो परमात्मा में जो है वो सब उनके अंश में भी है। सोने का बना हुआ कोई भी आभूषण सोने का ही अंश है, परीक्षण किया जाए तो उसमें सोना मिलेगा। हम नाक में पहने, चाहे कान में पहने, चाहे हम यहाँ पहने, चाहे हम यहाँ पहने, चाहे यहाँ पहने, लेकिन मूलतः वो स्वर्ण से भिन्न नहीं है। ऐसे हम चाहे जिस वर्ण के बने, चाहे जिस आश्रम में रहें, चाहे जिस देश में रहें, हम चाहे जिस भेष में रहें, चाहे जो संबंध बना के रहें, आपस में संबंध बनेंगे, लेकिन मूलतः हम परमात्मा के सब अंश हैं। ये ध्यान रखना। उस एकत्व का ज्ञान देने के लिए हमारा जीवन है कि तुम सब लोगों को हम एकता की ओर ले जाएं, प्रेम की ओर ले जाएं, शांति की ओर ले जाएं, सत्य की ओर ले जाएं, चित्त की ओर ले जाएं, आनंद की ओर ले जाएं।
सच्चिदानंदमय जीवन बनाने के लिए। तो भगवान तो सच्चिदानंद है। पूजा किसकी होती है? भगवान के पंचभूत शरीर की पूजा नहीं होती है, उसमें जो सच्चिदानंद भाव था उसकी पूजा। भगवान ने तो शरीर को छोड़ दिया, राम भगवान हो कृष्ण भगवान सबने उस शरीर को छोड़ दिया, फिर भी आगे उनकी पूजा होती है। तो उनमें जो सच्चिदानंद का बोध था, भगवान सच्चिदानंद थे और उन्हीं सच्चिदानंद के अंश हम तुम भी। जो भगवान में था वो हम में आप में था, लेकिन हम तुम भूल गए। उसको याद दिलाने के लिए गुरु होता है। अध्यात्म में गुरु इसलिए होता है, परमार्थ का जो गुरु होता है वो व्यवहार गुरु से थोड़ा भिन्न होता है। आध्यात्मिक जो गुरु है उसकी भूमिका यही होती है कि जीवो ब्रह्मैव न परा, ये जीव ब्रह्म से अलग नहीं। जैसे मिट्टी का बना हुआ घड़ा मिट्टी से अलग ही नहीं, और घड़ा बोले कि मैं मिट्टी को नहीं मानता हूँ, कोई आदमी बोले मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, तो मिट्टी कहेगा घड़े से चलो हम तुमसे मिट्टी निकाल ले रहे हैं, घड़ा तुम लिए रहो। घड़े की सत्ता कहाँ है? ईश्वर के बिना जीवों की सत्ता कहाँ है? घूम करके फिर करके ईश्वर की सत्ता सबको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी चल रही है 24 घंटे में, अपनी कक्षा में घूम जाती है। 365 दिन में सूर्य परिक्रमा कर लेती है। इसे कौन घुमा रहा है? कोई शासन घुमा रहा है, कोई सरकार घुमा रहा है, कोई पहले से घुमा रहा है कि अब घुमाना शुरू किया है। इसका मालिक कौन है? इस धरती का मालिक कोई मनुष्य है। धर्म है कि हम मालिक है। मालिक इस धरती का एक ईश्वर होता है और हम सब उसी ईश्वर के भक्त बन करके रहे। या रूप मिल जाए तो ईश्वर का ज्ञान दे देगा, तो ईश्वर तुमसे अलग नहीं होगा और तुम ईश्वर से अलग नहीं होगे। ईश्वर तुम्हारे ईश्वरत्व को जागृत करने के लिए गुरु होता है। गुरु वशिष्ठ ने राम में ईश्वरत्व को जागृत कर दिया। राम तुम ब्रह्म हो, जहाँ रहो राम ब्रह्म करके रहो। और जीवन के व्यवहार कर कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखते हुए और धर्म की रक्षा करना है। सबकी रक्षा, धर्म की रक्षा माने सबकी रक्षा। धर्म की रक्षा माने सभी की रक्षा है। हम जहाँ हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच है, वहाँ तक की रक्षा। जिस घर से शुरुआत करना है, पहले हम घर वालों का रक्षण करें, फिर और दायरा बढ़ जाए, परिवार बढ़ जाए, गांव बढ़ जाए, जिला बढ़ जाए, प्रदेश बढ़ जाए, देश बढ़ जाए, सारा विश्व। जिसकी जहाँ तक पहुँच है, जिसकी जहाँ तक सीमा है, जिसका जहाँ तक अधिकार है, वहाँ तक वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। जब संबंध बन गए धर्म पूरक, तो उनका निर्वाह ही करना है। दोनों, आप उनकी रक्षा करो, वो आपकी रक्षा करो। पति उसे कहते हैं कि पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करें, कपड़ा देकर, भोजन देकर, गहना देकर उसकी रक्षा करें। ऐसी बात न बोले कि मैंने उसको बुरा लग जाए, उसकी निंदा नहीं करना, तो उसके परिवार की निंदा करना। वो हर प्रकार से उसकी रक्षा करता है, और पत्नी अपने पति की हर प्रकार से रक्षा करेगी। कोई परिवार को लेकर चलेगी, पूरी परिवार का रक्षण करेगी, सब खाने पीना, सब साफ सफाई, सब पर ध्यान पति का रखती है। ऐसी कोई बात ना बोले कि कहीं पति की निंदा हो जाए, या पति ऐसी बात बोले कि पत्नी की निंदा हो जाए। एक दूसरे की रक्षा करोगे, रक्षा दोनों की होगी ना। तो इसी प्रकार से राष्ट्र की रक्षा, परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा, धर्म की रक्षा, मनुष्यता और मानवता की रक्षा करने के लिए ही और हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि जिसके जीवन में जो सामर्थ्य हो, जो योग्यता हो, जो अधिकार है, उसका हमें सबको सदुपयोग करना है। तो सदुपयोग करने वाले तो जीवन धन्य है, और दुरुपयोग करने वालों की निंदा होती है, सदुपयोग करने वालों की प्रशंसा होती है। तो आपने भी सदुपयोग किया है, हमारा रास्ता किया है। आज हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। माण पावरा दा, लोकां नूं माण पावरा दा, लोकां नूं माण पावरा दा, लोकां नूं माण पावरा दा, साडी पावर बजरंग बाला, माण पावरा दा, साडी पावर बजरंग बाला, लोकां नूं माण पावरा दा, साडी पावर बजरंग बाला, लोकां नूं माण पावरा दा, साडी पावर बजरंग बाला। जिथे कोई खड़दा ना